الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وبسط الأرض فراشا وخلق لها الأوتاد. اما بعد، لمذہب غیر مقلدین مسئلہ حلالہ میں فقہ حنفی اور حدیث کے درمیان تضاد ثابت کرنے کی خاطر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر اور اس پر جس کے لیے حلالہ کیا جائے، مگر فقہ حنفی ایسے کام کو جو لعنت کا سبب ہے موجب حلت قرار دیتی ہیں۔ دوسری ایک نازیبا بات، غیر مقلدین یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ احناف نے اپنے اپنے مدارس میں حلالہ کے نام سے باقاعدہ مراکز اور سینٹرز بنا کے رکھے ہیں، پس جس بھی حنفی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو وہ حنفی مدارس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہاں سن ڈاؤن کی شکل میں طلباء کرام پہلے سے موجود ہوتے ہیں جو اس لعنتی کام کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ جواب ہم سب سے پہلے حلالہ کی 2 قسمیں، پھر مشروط حلالہ کے متعلق فقہاء احناف کا فیصلہ، اور آخر میں غیر مقلدین کے ایک شبہے کا جواب ذکر کریں گے۔ یاد رکھیں حلالہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غیر مشروط حلالہ، یعنی کسی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالی، پھر اس عورت نے کسی دوسرے سے بغیر کسی شرط لگائے ہوئے نکاح کر لی، اس دوسرے خاوند نے اپنی مرضی سے اس کو 3 طلاقیں دے دی، تو اب یہ عورت پہلے خاوند کے لیے نکاح شرعی کے ساتھ حلال ہے، بس اسی کو غیر مشروط حلالہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ پہلی قسم یعنی غیر مشروط حلالہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پارہ نمبر 2 سورۃ بقرہ آیات 230۔ یعنی اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی 3 مرتبہ تو پھر اس کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ پھر اگر اس نے بھی طلاق دے دی تو کوئی گناہ نہیں سابقہ شوہر اور اس عورت پر کہ دوبارہ بذریعہ نکاح کے رجوع کرے۔ دیکھیں اس غیر مشروط حلالے کو قرآن مجید بھی ذکر کرتے ہیں۔ یاد رہے اس غیر مشروط حلالے کو ہم اہل سنت والجماعت والے بھی مانتے ہیں اور لامذہب غیر مقلدین بھی اس کو مانتے ہیں۔ یہ بالاتفاق جائز صورت ہے۔ حلالہ کی دوسری قسم مشروط حلالہ ہے، یعنی کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، پھر کسی دوسرے سے روز 2 کے لیے اس شرط پہ نکاح کرایا کہ تم نے اس کو 1-2 دن بعد طلاق دینا ہے تاکہ میرے لیے حلال ہو جائے، میں دوبارہ اس سے نکاح کر سکوں۔ اس مشروط حلالے کو ہمارے احناف نے بھی لعنتی اور مکروہ کام کہا ہے، اور اسی مشروط حلالے کو حدیث پاک میں لعنتی کام کہا گیا ہے۔ غیر مقلدین اس مشروط حلالے کو حنفی مذہب قرار دے رہے ہیں، جو کہ سراسر فقہ حنفی پر بہتان اور الزام ہے۔ آتے ہیں مشروط حلالہ کے متعلق فقہاء احناف کے فیصلے کی طرف۔ صاحب ہدایت لکھتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فَالنِّكَاحُ مَكْرُوهٌ كَقَوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، ہدایت جلد نمبر 1 صفحہ 376۔ یعنی جب کسی عورت سے اس شرط کے ساتھ نکاح کیا جائے کہ وہ پہلے خاوند کے لیے اس کو حلال کر دے گا تو یہ نکاح مکروہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلال کرنے والے اور جس کے لیے اس عورت کو حلال کیا گیا دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کے مستند عالم دین مشہور مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس نے 20 جلدوں میں معالم العرفان کے نام سے تفسیر لکھی ہے، حضرت اپنی تفسیر معالم العرفان میں
सूरत बकरा हिस्सा 2 सफ़ा 403 पे एक उन्वान कायम करते हैं मशरूत निकाह के नाम से। इसके बाद लिखते हैं कि इस वक्त मुरव्वजा हलाला की जो सूरत है वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब है। क्या फरमाते हैं? इस वक्त मुरव्वजा हलाला की जो सूरत है वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब है। इसी तरह फ़िक़्ह हनफ़ी की मारूफ मशहूर किताब शामी में भी इस मशरूत निकाह को मकरूह तारीमी करार दिया गया है। फरमाते हैं वकुरिहा तज़व्वुजु सानी तहरीमन लिहदीथ लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू कतज़व्वजतुकी अला अन उहल्लिलकी व इन हल्लत लिल अव्वल लिसिह्हतिन निकाह व बुतलानिश शर्त फला युजबरु अला तलाक। यानी मशरूत निकाह मकरूह तारीमी है, इस पर अल्लाह ताला की लानत की गई है और जिसके साथ निकाह हुआ उस शख्स को तलाक देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। क्या कहा? जिसके साथ निकाह हुआ यानी मशरूत निकाह, उस शख्स को तलाक देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। अब आखिर में गैर मुकल्लिदीन के एक शुबहे का जवाब। गैर मुकल्लिदीन कहते हैं कि मशरूत निकाह को जब हदीस में मलऊन काम करार दिया गया है तो ये आखिर नाफिज कैसे किया जाता है? जिस काम पर लानत पड़ गई उसको तो नाफिज ही नहीं होना चाहिए। इस शुबे के जवाब में हम इतना ही अर्ज करेंगे कि हर लानती अमल को इसका फासिद होना, इसका बातिल होना लाजिम नहीं आता, इसलिए कि शरीयत में कई उमूर ऐसे हैं जिनके लानती होने के बावजूद उनका एतबार किया गया है। दलील अव्वल अल-जामी उस-सगीर जिल्द 2 सफ़ा 247 पे हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लअनल्लाहुल मुस्तौफातिल्लती यदउहा ज़ौजुहा इला फिराशिही फतक़ूलु सौफ हत्ता यग़लिबहु ऐनाहु। यानी हर ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत है जिसको खावन अपने बिस्तर पे बुलाता है फिर वो कहती है जरा ठहर जा, यहां तक कि इस आदमी को नींद गालिब आ जाती है। अब इस औरत का खावन को इस अंदाज से टालना एक लानती फेल, एक लानती अमल है, मगर इसकी वजह से न तो वो इसके निकाह से निकल जाती है और न ही किसी शरई सजा की मुस्तहिक है। मतलब यह कि हदीस पाक में जिस काम पर लानत भेजा गया है वो काम बेशक मजमूम और बुरा है, मगर आगे इस काम की वजह से दिगर मामलात और काम खराब नहीं होते। दलील सानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लअनल्लाहु अर्रजुल यल्बसु लिब्सतल मरअति वल मरअत तल्बसु लिब्सतर रजुल। अल-जामी उस-सगीर जिल्द 2 सफ़ा 246। यानी अल्लाह ताला की लानत है ऐसे मर्द पर जो औरतों वाला लिबास पहनता है और उस औरत पर जो मर्दों वाला लिबास पहनती है। देखिए, मर्द का औरत वाला लिबास पहनना लानती फेल है, मगर इसके बावजूद सतर ढांपने का फरीज़ा इससे अदा हो जाता है। याद रखें, हलाला बिशर्त तहलील के लानती काम होने में न तो किसी को शक है और न इसमें किसी का इख्तिलाफ। इख्तिलाफ इसमें है कि क्या इस लानती काम के बावजूद निकाह हो जाता है कि नहीं। यहां पे मसला मुख्तलिफी मुज्तहिदीन हैं। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि शर्त तहलील जैसे लानती काम के बावजूद दूसरे खावन का इसको तलाक देने के बाद पहले खावन के लिए औरत के हलाल होने में कोई रुकावट नहीं बनती। यानी दूसरे खावन से इसका निकाह भी सही है, फिर उसका तलाक देना भी सही है और फिर पहले खावन के लिए यह हलाल भी हो जाती है। जबकि बाज़ अइम्मा हज़रात फरमाते हैं कि हलाला की तरह लानती शर्त लगाने से इस औरत का निकाह ही दुरुस्त नहीं। जब निकाह ही सही नहीं हुई तो ये पहले खावन के लिए हलाल भी नहीं होती। मसला तो मुख्तलिफी है, इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी किस्म की सराहत मौजूद नहीं। जैसे कि पहले हमने कहा कि इसमें अइम्मा किराम का इख्तिलाफ है, बल्कि सहाबाए किराम भी
दोनों जानिब मौजूद है। बात कहते हैं कि दूसरे खावन से इसकी निकाह भी सही है और उसका तलाक देना भी सही है, और बात कहते हैं कि नहीं दूसरे खावन से इसका निकाह भी सही नहीं तो उसका तलाक तो बतरीका औलाद सही नहीं। जब निकाह ही सही न हुई तो तलाक भी सही नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह के अरकान यानी इजाब व कबूल और इसके शराइत यानी महर और गवाह दोनों पाए गए हैं, इसलिए दूसरे शौहर से निकाह हो जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल में इसी की तायीद पाई जाती है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के हवाले से काज़ी शौकानी गैर मुक़ल्लिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल को नकल करते हैं कि एक औरत ने किसी आदमी को निकाह का पैगाम भेजा ताकि वो इससे निकाह करके पहले खावंद के लिए इसको हलाल कर दे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको हुक्म दिया अन युक़ीम मअहा वला युतल्लिक़हा व अवअदहु अन युआक़िबहु इन तल्लक़ा फसह निकाहुहु वलम यअमुरहु बिइस्तिनाफ़िही। नैरुल अवतार जिल्दो सफ़ा 151। यानी इस औरत को अपने निकाह में ठहराए रख और इसको तलाक न दे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस दूसरे खावन को तलाक देने से डराया, इसके निकाह को बावजूद हलाला की शर्त के सही करार दिया, नई सिरे से इसको निकाह का हुक्म नहीं दिया। लिहाजा लानती काम के बावजूद निकाह सही है। यही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का फैसला है और अहनाफ का फैसला भी इस बाब में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के फैसले के मुताबिक है। मजीद ये कि इसके खिलाफ कोई सरी और वाज़े इससे ऊपर की दलील भी मौजूद नहीं। बाकी रहा गैर मुक़ल्लिदीन का ये एतराज कि जब हलाला को मकरूह कहा गया है तो फिर इसका एतबार करके दूसरे खावन के साथ निकाह और फिर पहले खावन के लिए इसका हलाल होना क्यों करार दिया जाता है? तो इसका जवाब यह है कि बाज दफा कोई फेल ममनू होता है, लानती होता है, मगर आगे इसका नतीजा मोतबर समझा जाता है। जैसे कि खुद गैर मुक़ल्लिद आलिम ने लिखा है कि बहालत हैज वती जिमा करना हराम है मगर इससे पैदा होने वाली औलाद हलाली है। क्या है कि बहालत हैज वती हराम है मगर इससे पैदा होने वाली औलाद हलाली है। देखे फतावा एल हदीस जिल्द 3 सफ़ा 73। इसी तरह हनाफ कहते हैं कि हलाला मकरूह है मगर इसके नतीजे में दी गई तलाक का एतबार करके इस औरत को पहले खावन के साथ निकाह जायज होगा। क्या कि इस तरह हनाफ क्या कहते हैं कि हलाला मकरूह है मगर इसके नतीजे में दी गई तलाक का एतबार करके इस औरत का पहले खावन के साथ निकाह जायज होगा। मकाम शुक्र है कि हनाफ शरी हलाला के कायल है, यानी 3 तलाकों के बाद औरत दूसरे शौहर से निकाह करती है फिर बगैर हलाला की शर्त लगाए हुए अगर दूसरा खावन अपनी मर्जी से तलाक देता है तो हनाफ कहते कि औरत पहले खावन से अब दोबारा निकाह कर सकती हैं। इनका आपस में ताल्लुकात इस्तवार करना सही जायज और हलाल है, इसीलिए गैर मुक़ल्लिदीन और हम सब इसको हलाला ही कहते हैं न कि हरामा। इसके बरक्स गैर मुक़ल्लिदीन का नजरिया यह है कि एक ही मजलिस में दी गई 3 तलाक़ें 3 नहीं बल्कि 1 है, तो वो औरत जो 3 तलाकों के बाद बिल्कुल पहले खावन पर हराम होती हैं, आज पे दस्तूर हराम होने के बावजूद वो पहले खावन के साथ ही रहती हैं जो कि यकीनन हरामा ही कहलाएगा, क्योंकि 3 तलाकों के बाद बीवी के साथ रहना ऐसा है जैसे कि अजनबी औरत के साथ रहना। लिहाजा अहनाफ शरी हलाला के कायल है और गैर मुक़ल्लिदीन हरामा ही के कायल व फाइल है। बस पसंद अपनी अपनी। अल्लाह ताला हमें फ़हम दीन अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।